Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today we will be discussing very important unit of your 12th biology, actually 12th botany we say, that is genetics. This unit consists of two important chapters. Chapter number 1 in this genetics is principles of inheritance and variation, and second is molecular basis of inheritance. But as usual, this series I am discussing only for board examination, so only the list of important questions will be discussed. Let's get started. Question number 1. Define these terms: genetics, heredity and variation. Very simple. Okay, first let's define term genetics. Okay, I will first define term genetics. What is genetics actually? Simply, there was a scientist William Bateson who actually coined the term genetics. पहला पॉइंट ये लिखेंगे, term coined by William Bateson. Term genetics was coined by William Bateson. Okay, this genetics is simply the study of heredity and variations. वो मतलब क्या है अभी दिखाता हूं. Study of heredity and variations is known as genetics. Study of heredity and variations is known as genetics. वो पहले टर्म डिफाइन हो गई, study of heredity and variations is known as genetics. इसके बाद जो टर्म्स है इसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस, वही तो हमने जेनेटिक्स में ऑलरेडी डिफाइन किया है. तो ये हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है, इनको हम डिफाइन करते हैं नीचे. नेक्स्ट टर्म इज शाबाश, term number 2 is heredity, otherwise called inheritance. Heredity बोलो या inheritance बोलो, one and the same thing. This heredity means the mode of transmission of characters from parents to offsprings. Means characters का transmission माँ बाप से, parent से बच्चों के अंदर. That is the reason children always resemble their parents. You see, elephant always gives birth to elephant babies. A mango seed always produces mango plant. An apple seed will always give rise to apple tree. This process of transmission of characters from parents to their children to their offsprings or progeny is what we call as heredity or inheritance. Simply मैं लिखूंगा, the mode of transmission or transfer, the mode of transmission of characters, कहाँ से कहाँ, from parents to offsprings, offsprings means children or progenies, what you call. The mode of transmission of characters from parents to offsprings is what we call as heredity or inheritance. That's why simply we say like begets like, means जैसे parents होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे. That is like begets like. इसका मतलब क्या हो गया, like begets like, माँ बाप जैसे ही बच्चे होते. Like begets like, children are like their parents. This is what we call as heredity. शाबाश. Next term is variation. शाबाश. वेरिएशन का मतलब हो गया सिंपली, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे टर्म वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस.
वेरिएशन मीन्स इंडी डिफरेंसेस, लेकिन डिफरेंसेस किन के बीच? डिफरेंसेस बिटवीन द चिल्ड्रन, प्रोजेनीज एंड देयर पेरेंट्स। अब देखो, माँ बाप ने ट्रांसफर किए कैरेक्टर्स अपने बच्चों के अंदर, इसलिए बच्चे मिलते हैं अपने माँ बाप के साथ ही, जिसको हमने बोला लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर आप देखो, कोई बच्चा 100% आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट जैसा। या मानो जायगोटिक ट्विन्स को छोड़ के, जो बच्चे एक ही जायगोट से बनते हैं, तो उनको छोड़ के otherwise no two individuals are identical in the world. This difference between the children and their parents is what we call as variation, or it is the difference between the two individuals of same species. सर जैसे सारे इंसान दुनिया के अंदर एक ही स्पीशीज है, होमोसेपियंस। 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कोई दो इंडिविजुअल 100% आइडेंटिकल नहीं है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को छोड़ के। Means this difference between the individuals of same group or same species, this is otherwise called as variation. वही मैं लिखूंगा यहाँ पे, differences between the individuals, differences between the individuals of same species is what we call as variation, or you can simply write differences between the children and their parents. This is what we call as variation. Variation के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे काजेस है। एक कारण है म्यूटेशंस, डीएनए के अंदर तब्दीली आना। दूसरा कारण है मियोसिस के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन स्टेज में, प्रोफेज के अंदर, तो वो भी एक और कारण है। तीसरा कारण है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना। तो देयर आर मेनली 3 काजेस ऑफ वेरिएशन: म्यूटेशंस, क्रॉसिंग ओवर, व्हाट यू कॉल अदरवाइज रिकम्बिनेशन, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हालांकि हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें 3 टर्म्स को डिफाइन करना था। टर्म 1 वाज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन जेनेटिक्स। Heredity means mode of transmission of characters from parents to their children or offsprings, and variations are the differences between the children and their parents. Okay, these are the 3 differences, I mean terms. Next question की ओर बढ़ेंगे। आपको पता होगा ग्रीगर जॉन मेंडल, जिसको हम सिंपली मेंडल बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स अदरवाइज, ही वर्कड ऑन pea plant. What is this in scientific terms called, scientific language or scientific name, binomial nomenclature में इसका नाम दिया जाता है पाइसम स्टेवम। इंग्लिश में हम बोलते हैं गार्डन पी और सिंपली पी प्लांट। मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही चूज किया अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो इसने जेनेटिक्स में काम किया था 1856 से लेकर 1863 तक, 7 years उसने काम किया। क्यों किया मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट? देयर आर 5 रीजंस। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी, और व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी। शाबाश। रीजन क्या है? ही सिलेक्टेड पी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। देयर आर रीजंस व्हाई ही सिलेक्टेड पी। नंबर 1 रीजन, पहला रीजन क्या है व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी? नंबर 1, पी प्लांट जो है इट इज अ डिप्लॉयड प्लांट। डिप्लॉयड मतलब हो गया एवरी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ट्वाइस, और देयर आर 2 क्रोमोसोम सेट्स, वन फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर, ये रिसीव करते हैं। डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स को स्टडी करना बड़ा आसान है कंपेयर टू पॉलीप्लॉयड प्लांट्स। वेरी सिंपल, it is diploid. Pea plant is diploid means it has 2 chromosome sets. Diploid को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड प्लांट्स को स्टडी करना सबसे आसान है पॉलीप्लॉयड प्लांट्स के या हैप्लॉयड प्लांट्स के मुकाबले में। शाबाश। पी प्लांट इज डिप्लॉयड, दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड इट। सेकंड रीजन इज, पी प्लांट में दोनों किस्म के पॉलिनेशन पॉसिबल है। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। सेल्फ पॉलिनेशन ये नेचुरली करता है बिकॉज इसके अंदर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है। लेकिन इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं जब हम इसको एंथर करेंगे प्रीमेच्योर स्टेज पे रिमूव, जिसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन तो ये नेचुरली करता है पी प्लांट, इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ इमेस्कुलेशन। तो यही भी लिखूंगा, इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पी प्लांट में होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, मीन्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में है, जो मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड अंडरगोज, करेगा खुद ब खुद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में
naturally क्या possible है, autogamy, a type of self pollination, and undergoes self pollination, and undergoes self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली इसमें हो जाएगी, लेकिन बट क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं एलोगेमी और जीनोगेमी और आउटब्रीडिंग, बट क्रॉस पॉलिनेशन can be artificially performed, but cross pollination can be artificially performed by क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, emasculation. emasculation मतलब ये सुनो, ये टर्म ये मतलब क्या है, e means without, masculine, masculine means male, you know masculine feminine इंग्लिश में आप पढ़ते हो, मेल एंड फीमेल, masculine को मेल, ई मतलब को विदाउट, विदाउट मेल मीन्स आपको मेल पार्ट कट करना पड़ेगा। एक मिनट में समझाता हूँ ये क्या है। हमारे पास ये फ्लावर एक है, इसमें कैलेक्स कोरोला वो जरूरी नहीं है बिकॉज दे आर नॉन एसेंशियल। इसमें ये स्टेमेन है, फ्लावर में ये स्टेमेन है, मेल पार्ट है, और ये है कार्पल। जिस फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, स्टेमिन होगा, कार्पल होगा, या आप एंड्रोशम और गाइनोशम बोल सकते हैं, इसको हम बोले बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेचुरली क्या होगा, इसका अपना पोलन ग्रेन करेगा पॉलिनेट इसको, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होना, दैट्स ओके। लेकिन इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं वेरी इजीली। करना क्या पड़ेगा, इसको प्रीमेच्योर स्टेज पे ये एंथर हटाना पड़ेगा। जब आपने एंथर हटाया इसका, अब तो इसको पोलन ग्रेन देना होगा ये से पॉलिनेशन होने के लिए। व्हेन यू कट द premature anthers from a bisexual flower so that its self-pollination or autogamy is prevented and cross-pollination will automatically now be favored। तो इसके बाद हम pollen grain अपनी मर्जी का, चॉइस का desired pollen grain कर सकते हैं इस्तेमाल pollination के लिए। और this removal of premature anthers from a bisexual flower to prevent autogamy, to prevent self-pollination is known as emasculation। okay, so ये आपको पता ही है। शाबाश, यहां लिखूंगा ब्रैकेट में, व्हाट्स इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर क्यों, क्योंकि तब तो इसने पोलन ग्रेन्स नहीं बनाए होंगे, तो पोलन के बनाने के बाद आप हटाएंगे तो देयर इज नो सेंस। रिमूवल ऑफ प्रीमैच्योर एंथर्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या प्रिवेंट करने के लिए, ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो जाए। सो फर्स्ट रीजन वाज pea plant is diploid. Second is pea plant has bisexual flowers where self pollination naturally takes place and cross pollination can be artificially performed. Means both types of pollinations are possible in case of pea plant. Advantage है, अगर इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते फिर सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। एनीवे, तीसरा है, इसको ग्रो करना आसान है बिकॉज ये सिंपल हर्ब है, शॉर्ट प्लांट है, एक पॉट में भी इजीली ग्रो किया जा सकता है। अच्छा, जमीन कुनाल आत्म जरूरत के सिंपल पॉट प्लांट है ये, इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है घर के अंदर भी। मीन्स इट इज ईजियर टू कल्टिवेट या ग्रो, इट इज ईजियर टू कल्टिवेट और ईजियर टू ग्रो। अनदर रीजन इज ये एनुअल प्लांट है। एनुअल मीन्स इट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, 2 to 3 मंथ्स में रेडी होता है। आप सीड करेंगे सो ये नया ग्रो प्लांट हो जाएगा, इसके बाद फ्लावर्स बनाएगा, फ्रूट सीड्स वटेवर, ये सारा 3 महीने में होता है। जो प्लांट्स लाइफ साइकिल करते हैं कंप्लीट एक सीजन में, 2-3 महीनों में, उनको हम बोलते हैं एनुअल्स। सो ये क्या है एनुअल, इट इज एन एनुअल दैट इज हैज शॉर्ट lifespan, short lifespan of around 3 months, तकरीबन 3 महीने के अंदर ये कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल। ओके, एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। तो ये एडवांटेज क्या है, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट खराब भी हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी, नए 3 महीने के अंदर हम इजिली इसको फिर से कर सकते हैं ग्रो। शाबाश। 5वां रीजन है इसका, जो पी प्लांट उस वक्त मेंडल ने सिलेक्ट किया था, उसमें हर कैरेक्टर के 2-2 ऑप्शंस थे। जैसे फ्लावर कलर या पी प्लांट में या तो था वायलेट कलर का या था वाइट, तीसरा था ही नहीं। हाइट के हिसाब से या तो पी प्लांट टॉल थे 6 फीट, या तो शॉर्ट थे 2 फीट,
इंटरमीडिएट था ही नहीं. एवरी कैरेक्टर ही सिलेक्टेड इन पी प्लांट हैड ओनली टू ऑप्शंस, टू ट्रेट्स, टू I say states. I mean two options only. So every character he selected had only two options, two contrasting features, two contrasting characters. Means इससे क्या हो जाएगा, अब अगर हाइट की बात करेंगे, टॉल पी को क्रॉस करेगा शॉर्ट पी के साथ और देखेगा इनके बच्चों के अंदर जिनको हम F1 बोलते हैं, दो में से कौन सा कैरेक्टर अपियर हो जाएगा. दैट्स वेरी इजी. क्या है, इट हैड, इसको क्या थे, इट हैड ओनली टू डिस्टिंक्ट में अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट contrasting characters. It had only two distinct contrasting characters, जिनको हम traits भी बोलते हैं, contrasting characters को traits भी. Okay, it has only two distinct contrasting characters for each character. हर character के दो दो options थे. जैसे height एक character है, इसके दो contrasting characters है traits से, tall and short, tall and dwarf what you call. इस तरह फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, ऑप्शंस दो ही थे, ट्रेट्स दो ही थे, या तो वायलेट फ्लावर या था वाइट फ्लावर. लाइकवाइज, सो दीज आर द 5 रीजंस व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी. ओके, आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मतलब विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन, वही हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. शाबाश. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मानो हाइब्रिड क्रॉस लेके देखो, हर जीन के दो दो अलील होते हैं मेंडल के हिसाब से. एज पर मेंडल एवरी जीन हैड 2 अलील्स. जैसे अगर हम हाइट देखेंगे, हाइट हो सकती है या पी प्लांट की टॉल, या हो सकता है पी प्लांट शॉर्ट हाइट में, शॉर्ट को हम डॉर भी बोलते हैं. टॉलनेस के लिए होते हैं पी प्लांट में 2 अलील, वो हो सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल से हम डोमिनेंट अलील को दिखाते हैं, शो करते हैं. और शॉर्टनेस के लिए हम अलील को दिखाते हैं स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में. एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, मेंडल ने बोला था हर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन, और हर जीन के होते हैं 2 2 अलील. हालांकि मेंडल के मरने के बाद देखा गया कुछ क्या बहुत सारे जीन्स के 2 से ज्यादा अलील भी हो सकते हैं, वो तो अलग बात है. लेकिन मेंडल के हिसाब से एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड ईच जीन हैज 2 अलील. जैसे हाइट, टॉलनेस इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स शोन बाय कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट. शॉर्टनेस इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स स्मॉल टी शोन बाय स्मॉल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स. अब देख लेना, जब हम एक पी प्लांट को जो हाइट होगा, इसकी हाइट टॉल है, इसको क्रॉस करेंगे, मतलब को इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर डालेंगे या इसका पोलन ग्रेन इस पे डालेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये टॉल प्लांट ये बनाएगा सारे के सारे गेमीट ऐसे, दूसरा गेमीट भी कैपिटल टी, तीसरा तो मैं एक ही को शो कर रहा हूं. ये भी जब मियोसिस करेगा ये बनाएगा गेमीट स्मॉल टी हैप्लॉइड. जब ये दोनों गेमीट्स, मेल गेमीट फीमेल गेमीट मिल जाएगा, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी. देख लीजिए, ये जो F1 होगा मीन्स ये पेरेंट एक है, दिस इज पेरेंट 1, दिस इज पेरेंट 2. एक पेरेंट है टॉल हाइट में पी प्लांट, दूसरा प्लांट है शॉर्ट या डॉर्फ. जब इन दोनों को हमने क्रॉस पॉलिनेशन की, मतलब वो क्रॉस किया आपस में, इसका पोलन ग्रेन उठाया इसके ऊपर या वाइस वर्सा, फिर इनका जो सीड बन गया, सीड से अगर नया प्लांट वजूद में आ जाएगा, व्हाट यू कॉल F1. F1 जब देखा गया इट वाज फाउंड टू बी टॉल, F1 टॉल था. टॉल क्यों था? क्योंकि इसमें कैपिटल टी मौजूद था. डोमिनेंट हो गया वो जो एक्सप्रेस हो जाएगा हर सूरत के अंदर, वेदर देयर आर होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस. एनीवे, तो इस F1 के अंदर कितने अलील है? अब 2. जब 2 अलील होंगे आइडेंटिकल सेम, वी कॉल इट होमोजाइगस. या ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है. 2 अलील है 2 डिफरेंट किस्म के, वी कॉल इट हेटेरोजाइगस. जब ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल गेमीट बनाता है, ये बनाएगा 2 किस्म के गेमीट, 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स. एक किस्म का गेमीट बनाएगा ये, उसमें होगा कैपिटल टी. दूसरा
किस्म का गेमिट जो है उसमें होगा स्मॉल टी, मतलब को टॉलनेस का अलील एक गेमिट में, शॉर्टनेस का अलील दूसरे गेमिट में। सो इस इंडिविजुअल ने, इस F1 ने, इस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ने बनाए दो किस्म के गेमिट, मतलब को इसने गेमिट्स खुद ही हेट्रोजाइगस है। इसने गेमिट जब बनाए, दो अलील्स चले गए दो अलग अलग गेमिट्स के अंदर। अलग अलग होना, सेपरेट होना एक दूसरे से, इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। नाम क्या नाम देते हैं? सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, मीन्स two alleles during gamete formation or meiosis, they separate from each other in such a way that one allele goes to one gamete and another allele goes to different gamete. Means how can you define law of segregation? It states that alleles segregate or separate from each other during gamete formation or meiosis in such a way that each gamete receives only one allele for each gene. जो हाइट का जो है, हाइट का जीन यहाँ पे है, इसके दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइट जीन का कैपिटल वो जाएगा एक गेमिट में, हाइट जीन का जो है दूसरा एलील है दैट इज स्मॉल, इट विल गो टू अ डिफरेंट गेमिट। मीन्स एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन एंड ओनली वन एलील विल गो टू वन गेमिट फॉर ईच जीन। तो मैं लिखूंगा इसको यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करके मैं यहाँ लिखूंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में चलो कहाँ लिखेंगे, तो इसको मैं रब करता हूं, बाद में समझाऊंगा आपको मैं डिटेल में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लिखेंगे पहला पॉइंट, क्या लिखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? इट स्टेटस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेटस, इट स्टेटस अलील्स, जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील्स। इट स्टेटस अलील्स सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब अभी बोला था सेपरेट होना, अलग अलग होना। इट स्टेटस अलील सेग्रीगेट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दो अलील अलग अलग हो जाते, ईच अदर, किस प्रोसेस के दौरान? ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट बनाने के दौरान, गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट बनते हैं किस प्रोसेस में? मियोसिस में। शाबाश। ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन और ड्यूरिंग मियोसिस, अलील सेग्रीगेट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। किस हिसाब से? इन सच ए वे, इस हिसाब से सेपरेट होते हैं आपस में, इन सच ए वे दैट ईच गेमीट रिसीव्स, एक गेमीट को मिलता है एक जीन का एक ही एलील, in such a way that each gamete receives only one allele for each gene. इसका मतलब हो गया गेमीट के अंदर दो अलील हो ही नहीं सकते हैं, मतलब को गेमीट कभी हेटेरोजाइगस हो नहीं सकता है, दैट इज गेमीट्स कैन नेवर बी हेटेरोजाइगस। या हम लिखूंगा गेमीट्स आर ऑलवेज प्योर, प्योर मतलब को देयर इज ओनली सिंगल एलील फॉर ईच जीन, दैट्स गेमीट्स आर ऑलवेज प्योर। ओब्लिक गेमीट्स आर नेवर हेटेरोजाइगस, नेवर हेटेरोजाइगस मतलब को दो डिफरेंट एलील्स पॉसिबल इन हेटेरोजाइगस। गेमीट्स आर ऑलवेज प्योर और दे आर नेवर हेटेरोजाइगस। शाबाश, ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये वाला लॉ जो है मेंडल का, मेंडल ने बहुत सारे लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया इसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, लेकिन ये वाला लॉ वो है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है दुनिया के अंदर आज भी, एक्सेप्ट दैट नॉन डिसजंक्शन abnormal feature. Otherwise this law is applicable to all living organisms which reproduce sexually, means which undergo process of meiosis. उनमें ये segregation normal process है जिनमें ये एक्चुअली ये पाया जाता है हर एक sexually reproducing organism के अंदर during the process of meiosis. मैं ऐसे लिख सकता हूँ, it is a universal law, it is a universal law of Mendel. मेंडल का यूनिवर्सल लॉ है, मतलब वो एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो मियोसिस करते हैं, जो गेमीट फॉर्मेशन करते हैं, उनमें ये पॉसिबल है, उनमें ये एप्लीकेबल है। इट्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल। चलिए अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमें एक्सप्लेन करना है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन फॉर किसके लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन किया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of monohybrid cross. It can be explained with the help of monohybrid cross. कैसे, देखो monohybrid cross की मदद से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। I will take two pea plants, tall pea plant और dwarf pea plant. Dwarf means short pea plant. You can write dwarf or short. देखो इसमें नेचुरली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन हमें यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ेगी। हमें एक प्लांट का पोलन ग्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा फीमेल पार्ट। चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं टॉल प्लांट को एज फीमेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं इमेस्कुलेशन करूँगा, इसका मेल पार्ट में हटाऊंगा इमेस्कुलेशन की मदद से। तो यहाँ पे इस ड्वार्फ का मैं करूंगा पोलन ग्रेन इस्तेमाल, इसका पोलन ग्रेन लगाएंगे इसके ऊपर, मीन्स इसको मैंने पोलन डोनर के तौर पे इस्तेमाल किया, मेल के तौर पे इस्तेमाल किया। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन जीन हैविंग टू अलील्स। टॉलनेस इज कंट्रोल बाय वन जीन हैविंग टू अलील्स। इनको मैं कैपिटल में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, ये अपेयर होता है बच्चे के अंदर। तो इनके दो अलील्स को भी मैं शो करूंगा यहाँ पे, लेकिन स्मॉल लेटर्स में, बिकॉज ये रिसेसिव है। मियोसिस के दौरान जब मियोसिस हो जाएगी, यहाँ लिखूंगा मैं मियोसिस, क्योंकि मियोसिस से ही गेमीट ये बनाएगा। मियोसिस ये भी करेगा, ये भी करेगा। मियोसिस में बनाएगा ये सारे के सारे गेमीट्स इस किस्म के, कैपिटल टी, दूसरा भी बनेगा कैपिटल टी, तीसरा भी बनेगा कैपिटल टी, चौथा भी बनेगा कैपिटल टी वाले। ये बनाएगा गेमीट सारे के सारे स्मॉल टी वाले। ये मेल गेमीट है क्योंकि ये मेल इंडिविजुअल ने बनाया, ये फीमेल इंडिविजुअल ने बनाया, फीमेल गेमीट है। मेल और फीमेल गेमीट मिल जाएंगे, जिसको हमने नाम दिया है सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज हो गया। गेमीट जब फ्यूज होते हैं ये जायगोट बनाते हैं, जायगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस की मदद से। फिर एम्ब्रियो यहाँ पे होता है सीड के अंदर। जब हम इस सीड को करेंगे मतलब ये अब जमीन से बाहर जाएगा, इस सीड का जो फिनोटाइप होगा, जो शक्ल होगी, जो जाहिर तौर पे इसका एक्सप्रेशन होगा, दिस इंडिविजुअल व्हाट वी कॉल F1. F1 means here the filial one generation, or you can say F1 means first filial generation, children means, शाबाश। ये क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा टॉल, क्योंकि इसमें टॉल अलील मौजूद है। रिसेसिव अलील कोई असर नहीं दिखा पाएगा यहाँ। सो हमारे पास पेरेंट क्या था, एक टॉल, दूसरा क्या था शॉर्ट, एक शॉर्ट दूसरा टॉल, लेकिन इनका बच्चा कैसा है, टॉल। तो इसको हम क्या करेंगे बाद में, इसको हम बाद में करेंगे सेल्फिंग, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे इसको। सेल्फिंग मतलब हो गया सेम किस्म के साथ वापस, मतलब को जैसा ये खुद है इसी का होगा, पोलन ग्रेन भी इसी का होगा, फीमेल पार्ट भी, मतलब को अपने के साथ ही करना फर्टिलाइज, जैसा है खुद के साथ। दिस कॉल्ड सेल्फिंग। ये कितने गेमीट बनाएगा, ये बनाएगा 2 गेमीट, देखो ये बनाएगा 2 गेमीट। अब देखो सेग्रीगेशन, देखो यहाँ पे जब ये सेग्रीगेशन करेगा, दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, लेकिन ये इंडिविजुअल बनाएगा 2 किस्म के गेमीट्स। ये कैपिटल टी को डालेगा एक गेमीट के अंदर, स्मॉल टी को दूसरे के अंदर। हालांकि इंडिविजुअल में 2 किस्म के एलील है, लेकिन जब ये गेमीट बनाता है इनको साथ में नहीं, ये अलग अलग इनको करता है। कैपिटल टी को एक गेमीट में, स्मॉल टी को दूसरे के लिए, ये करता है एलील्स को आपस में दूर दूर अलग अलग सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेशन किस प्रोसेस में होता है, मियोसिस में, मीन्स गेमीट फॉर्मेशन के दौरान। सो विद द रिजल्ट दिस इंडिविजुअल will make 2 types of gametes, capital T अलग, small t अलग, 2 अलग अलग किस्म के गेमीट। जिसके साथ आपने इसको क्रॉस किया वो भी क्या है, ऐसा ही वो फीमेल पार्ट में भी बनाएगा 2 किस्म के गेमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आप मान लीजिए मेल गेमीट्स, जी मतलब वो गेमीट, या आप मेल इंडिविजुअल मान लीजिए 2 किस्म के गेमीट, या आप मान लीजिए फीमेल इंडिविजुअल, ये फीमेल गेमीट इसके, इनको पुनेट स्क्वायर में, इस बॉक्स को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। तो ये करेंगे हम यहाँ पे फ्यूज, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उसके साथ कैपिटल लिखो पहले या स्मॉल नो प्रॉब्लम ये इसके साथ। ये क्या होगा, टॉल, ये भी होगा टॉल, लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है।
ये भी टॉल होगा, ये भी डॉर्फ होगा। अब देखो F1 को हमने सेल्फिंग की, अब जो बच्चे निकल जाएंगे इनको हम बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं ना? F2 होगा ये इंडिविजुअल्स। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगा? फिनोटिप मतलब गो एक्सटर्नली जो आपको दिखता है, कितने टॉल, 1 2 3, गो 3, डॉर्फ कितने हैं 1, इट डज नॉट मीन 4, इट्स रेशो। ये कितने हैं बाय द वे? ये है 3, कितने में से? 4 में से, 3/4, 3/4 मीन्स 0.75 मीन्स 75%, 3/4 मीन्स 75% होंगे टॉल। ये कितने होंगे? 1 आउट ऑफ 4, वो हो गया 0.025%, मीन्स डोमिनेंट होंगे 75% और रिसेसिव होंगे 25%। जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशो मतलब को कितने हैं होमोजाइगस डोमिनेंट? 1, हेटेरोजाइगस ये भी हेटेरोजाइगस 2, ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव 1:1। अब देखो सेग्रीगेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडिविजुअल को खुद क्या है? F1 हेटेरोजाइगस, लेकिन जब ये गेमीट बनाता है, गेमीट इसके हेटेरोजाइगस नहीं होते हैं, इसके गेमीट होते हैं प्योर। चलो मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको यहाँ पे। F1 इंडिविजुअल में यहाँ पे दिखाऊंगा, सिंपल अंदाज में आप ऐसे करेंगे, दिस इज एन F1 इंडिविजुअल विच इज हेटेरोजाइगस, इज इट? F1 इंडिविजुअल इज हियर हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये मियोसिस करता है, गेमीट फॉर्मेशन करता है, ये कितने किस्म के गेमीट बनाता है? ये बनाता है 2 टाइप्स के गेमीट्स। एक बनाता है ये कैपिटल टी वाले, दूसरा बनाता है स्मॉल टी वाले। मीन्स इसके दोनों जो ये गेमीट है, ये इसके क्या है? गेमीट्स। बोथ दीज गेमीट्स कैरी ओनली सिंगल अलील फॉर ईच जीन। देखो हाइट के लिए इसके पास एक अलील है, हाइट के लिए इसके पास दूसरा अलील है, मीन्स ओनली 1 allele of each gene will go to 1 gamete, means gametes are always pure, they cannot be heterozygous. This is how segregation takes place during gamete formation, where an individual gives rise to different types of gametes, but each gamete receives only single allele for each gene. This is the explanation of law of segregation. Means law of segregation can be explained with the help of monohybrid cross, and then you have to show this monohybrid cross. You have to show this diagram. Very simple. This is heterozygous individual producing 2 types of gametes, wherein only one gamete, one gamete receives 1 allele for each gene, and another gamete receives another allele for this gene. Okay, this is explanation for law of segregation. आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। बैक क्रॉस मतलब क्या है और बैक क्रॉस के टाइप्स बोलिए। वेरी सिंपल, देखो मैं यहाँ पे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाऊंगा आपको, ये सारा समझ आ जाएगा खेल आपको। मेरे पास एक टॉल पी है, टॉल पी प्लांट, इसको मैं क्रॉस करूंगा दूसरे पी प्लांट के साथ जिसकी हाइट है शॉर्ट या जिसकी हाइट है डॉर्फ। पी प्लांट नेचुरली करेगा सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन मैं करना चाहता हूं इसको क्रॉस, मतलब को क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ टर्म है क्रॉस, मतलब को क्रॉस पॉलिनेशन में करना चाहता हूं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मुझे पी प्लांट को करनी पड़ेगी सेल्फिंग एक को। एग्जांपल के तौर पे मैं टॉल प्लांट को करूंगा यहाँ पे इमेस्कुलेशन, मैंने इसको इमेस्कुलेशन की। इमेस्कुलेशन मतलब को मैंने इसका मेल पार्ट हटाया, अब ये फीमेल रह गया, इसका मैं पोलन ग्रेन इस्तेमाल करूंगा, ये मेल प्लांट है। तो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन हैविंग 2 alleles, height is controlled by, tallness is controlled by 2 alleles, कैपिटल से हम शो करते हैं। डॉर्फनेस इज कंट्रोल्ड बाय 2 alleles, इसको हम स्मॉल लेटर से लोअर केस लेटर से शो करते हैं। तो ये बनाएगा सारे के सारे गेमीट ओनली ऑफ 1 टाइप कैपिटल टी, ये बनाएगा ओनली ऑफ 1 टाइप स्मॉल टी। ये मेल गेमीट है, फीमेल गेमीट है, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। तो यहाँ पे चिल्ड्रन को हम बोलते हैं F1। ये क्या होगा? ये होगा टॉल, इट्स कॉमन सेंस, नो प्रॉब्लम। टॉल होगा बिकॉज इसका टॉल का लीड कैपिटल टी यहाँ पे मौजूद है, डोमिनेंट 1। अब नॉर्मली हम इसके बाद क्या करते थे? सेल्फिंग। नहीं, यहाँ पे सेल्फिंग अब नहीं करनी है, यहाँ बैक जाना है आपको वापस जाना है क्रॉस करने के लिए। मीन्स आपको वापस जाना है क्रॉस करने के लिए। F1 को अब हम करेंगे F1 को हम वापस करेंगे क्रॉस। F1 को हम करेंगे क्रॉस इसके साथ, मतलब को F1 का पोलन ग्रेन इसके ऊपर डालेंगे अगर ये फीमेल है यहाँ पे, या F1 का पोलन ग्रेन डालेंगे इसके ऊपर, या वैसे वर्षा उसका डालेंगे इसके ऊपर। क्रॉसिंग ऑफ F1 विद एनी ऑफ द 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स में से किसी के साथ क्रॉस करो F1 को किसी भी पेरेंट के साथ, 2 पेरेंट्स में किसी के साथ क्रॉस करो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बैक क्रॉस।
लेकिन जब हम F1 को करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस, इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ F1 विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज कॉल्ड आउट क्रॉस, एंड क्रॉसिंग ऑफ F1 with homozygous recessive parent, it's called test cross. It's called test cross. यहाँ लिखूंगा, एक मिनट में लिखूंगा। यहाँ पे बैक क्रॉस यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिखूंगा मैं सारा ये। What do you mean by back cross? Back cross means crossing of F1 with any of the two parents. Yes? यहाँ लिखूंगा मैं, crossing of F1 means child, progeny. Crossing of F1 with any of the two parents, either of the parents, with any of two parents. दो में से किसी के साथ भी क्रॉस करना, with any of two parents is what we call as back cross. Back cross के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स वहां लिखा है, टाइप्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। टाइप्स में दो टाइप्स है। पहला क्या है इसका? बैक क्रॉस का पहला टाइप है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस पहला है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम F1 करते हैं किसके साथ क्रॉस? यहाँ पे हाइट, जिसको हाइट हमने ली है, हम फ्लावर कलर हम कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए। तो आउट क्रॉस में क्या लिखेंगे? क्रॉसिंग ऑफ F1 विद किसके साथ? homozygous dominant with homozygous dominant parent। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे F1 क्या है बाय द वे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको किसके साथ क्रॉस किया? होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, कैपिटल टी के साथ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज आउट क्रॉस। दिस आउट क्रॉस हियर। दूसरा क्या है? टेस्ट क्रॉस। दूसरा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में जब F1 को क्रॉस करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, यहां लिखूंगा वही, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद homozygous recessive parent is what we call as test cross. एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे F1 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हेट्रोजाइगस। इसको क्रॉस करना होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, वो है यहाँ पे स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी के साथ किया था आउट क्रॉस में, यहाँ हमने स्मॉल टी के साथ। दिस इज बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के दो टाइप से। अब आउट क्रॉस हम कभी नहीं कहते, आउट क्रॉस से हमें कुछ नहीं मिलता है, आउट क्रॉस इज यूजलेस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। बट this test cross has lot of significance. Test cross is used to determine the genotype whether individual। देखो यहाँ पे एक चीज मैं समझाऊंगा आपको। मेरे पास तीन किस्म के प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप्स। ये इंडिविजुअल क्या होगा? टॉल। ये इंडिविजुअल क्या होगा? टॉल। ये वाला इंडिविजुअल क्या होगा? डॉर्फ, मीनिंग शॉर्ट। अब क्या देखो, डॉर्फ इंडिविजुअल इज ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन टॉल इंडिविजुअल इट कैन इधर बी होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल। लेकिन कौन सा इंडिविजुअल होगा ये वाला टॉल, कौन सा होगा ऐसा, इसी चीज के लिए टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, a dominant individual, whether it is of homozygous dominant nature or heterozygous nature, we use the technique called as test cross. Test cross is used to determine the genotype of an individual which has dominant phenotype. मतलब को यह होगा इस किस्म का या इस किस्म का, एक डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप निकालने के लिए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस, वी यूज द टेक्निक कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। एक लाइन में लिखूंगा यहां पे, टेस्ट क्रॉस। आप लिख सकते हो बैक क्रॉस, लेकिन हम क्योंकि बैक क्रॉस में आउट क्रॉस भी लेते हैं और टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस इज, आई मीन आउट क्रॉस इज नेवर परफॉर्म, इट इज नो सिग्निफिकेंस। टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड किस चीज के लिए? टू डिटरमिन जीनोटाइप
ऑफ F1 लिखेंगे, और F1 में लिख सकता हूं या अननोन इंडिविजुअल with dominant phenotype। शाबाश, ये टेस्ट क्रॉस सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और उसकी एग्जांपल समझाऊंगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? शाबाश, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो, अभी मैंने आपको बोला अगर हम टाल पी को क्रॉस करेंगे शॉर्ट के साथ, डॉर्फ के साथ, F1 इनका बच्चा क्या होगा? टाल। यह हो गया डोमिनेंस। मीन्स जब दो पेरेंट्स में से एक का कैरेक्टर आ जाएगा बच्चे के अंदर, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। लेकिन जब पेरेंट्स का कोई भी कैरेक्टर मुकम्मल तौर पे बच्चे के अंदर असर नहीं दिखाएगा, उसको हम बोलते हैं नाम इनकम्प्लीट। मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पहला पॉइंट लिखो, इट इज एन एक्सेप्शन। यहां पे मेंडल का कौन सा लॉ फेल हो जाता है? इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है, यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो पाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इसके और नाम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के और नाम है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेमी डोमिनेंस, या बोले पार्शियल डोमिनेंस, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, लग रहा है शायद मिक्सिंग हो गई है, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सेमी मीन्स हाफ, पार्शियल मीन्स हाफ। सेमी डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ F1 यानी कि बच्चे का कैरेक्टर ऐसा होता है कि जो ना बाप से मिलता है ना माँ से मिलता है। जब F1 ऐसा कैरेक्टर दिखाएगा जो दो पेरेंट्स में से किसी के पास नहीं होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ये एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी पहले लिखेंगे हियर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? हियर F1 shows a phenotype, here F1 shows a phenotype that does not resemble to any parent। तो पेरेंट्स में से किसी के साथ नहीं मिलता है, that does not resemble to any parent। when F1 shows a phenotype which does not resemble to any parent is called incomplete dominance। ओके, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, देख लीजिए। एग्जाम्पल है फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस, पूरा नाम है इसका मिराबिलिस जलापा, जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं 4 o'clock प्लांट। और क्या है? फ्लावर कलर ऑफ एंटियराइनम, फ्लावर कलर ऑफ एंटियराइनम मैजस, एंटियराइनम मैजस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नैपड्रैगन, और डॉग फ्लावर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में, और डॉग फ्लावर। और भी एग्जांपल्स है, ये मेन दो एग्जांपल्स। बड़ा सिंपल है, सीधा साधा है। मैं आपको यहीं से ये करूंगा क्लियर कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है ये। देखो, मैं करूंगा एक्सप्लेन एक एग्जांपल। चलो ठीक है, इसमें से इन दो सेम है, सेम पैटर्न दोनों के अंदर पाया जाता है। देखो, इनकेस ऑफ दिस प्लांट, मिराबिलिस हो ये प्लांट हो, दो में से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। प्लांट हैज रेड फ्लावर्स, मैं लिखूंगा यहां पे रेड फ्लावर्ड नॉट पी, मिराबिलिस प्लांट और स्नैपड्रैगन is crossed with another plant which has white flowers, white flowers वाला। बिल्कुल पी प्लांट की तरह ये बाइसेक्चुअल है, इसलिए हमें एक मेल बनाना पड़ेगा, दूसरा फीमेल। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन हैविंग 2 एलील्स। यहाँ पे इसके लिए 2 एलील है, कैपिटल से हम शो करते हैं, डोमिनेंट है। ये स्मॉल से शो करेंगे। ये बनाएगा एक ही किस्म का गेमेट, जैसे कैपिटल आर। ये बनाएगा एक ही किस्म का गेमेट, स्मॉल आर वाले। इन दो गेमेट्स को आप फ्यूज करो, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? F1, शाबाश,
F1 है। बोलो F1 मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए? इट शुड बी रेड, बट it was found to be pink flavored. देखो अब पेरेंट में क्या था कैरेक्टर? रेड। इस पेरेंट में क्या है? वाइट। बच्चे के अंदर क्या है? न वाइट न रेड, मीन्स बच्चे ने वो कैरेक्टर दिखाया जो माँ बाप में किसी के पास नहीं था। व्हेन F1 shows a phenotype, a character which does not resemble to any parent, this is called incomplete dominance। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। Here F1 shows a phenotype means a character that does not resemble to any parent, जो that does not resemble to any parent, यहाँ पे लिखेंगे that does not resemble to any parent, या that does not resemble to parents, this is what we call incomplete dominance। तो इसके बाद अगर हम इसको आगे ले जाएंगे, इस क्रॉस को, इसको करेंगे सेल्फिंग यहाँ पे, मतलब को इसी जैसे के साथ क्रॉस करना। ये बनाएगा दो किस्म के गेमीट। यस, क्या क्या? कैपिटल आर और स्मॉल आर, इज वेरी सिंपल। और ये खुद ही के साथ क्रॉस करना है, वो भी ऐसा ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनाएगा गेमीट। इसको क्रॉस करेंगे आप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये उसके साथ स्मॉल आर, ये मान लीजिए आप मेल गेमिट इस साइड फीमेल गेमिट, दैट्स वेरी इजी। तो आप देखेंगे ये क्या होगा, शाबाश, ये होगा रेड, यस ये होगा रेड, ये वाला रेड है ना, कैपिटल आर। ये क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड नहीं होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा पिंक। यस, मैं लिखना सीधे पी यहाँ पे पिंक, ये भी होगा पी मीन्स पिंक। ये होगा वाइट, स्मॉल आर वाइट होगा, तो ये F2 है यहाँ। तो फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक रेड है, दो पिंक है, एक वाइट है। जीनोटिपिक रेशो भी सेम आ जाएगा। कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर दो है, स्मॉल आर एक है। मीन्स जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का था उसमें 3:1 आता था फिनोटिपिक रेशो, लेकिन यहाँ पे 1:1, बिकॉज हियर F1 हैज डिफरेंट फिनोटाइप देन ईदर ऑफ द पेरेंट्स। ओके, मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फेल हो रहा है। इसमें F1 ऐसा फिनोटाइप शो करता है जो दो पेरेंट्स में से किसी के पास नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो की। आगे बढ़ेंगे। पीलियोट्रॉपी का ब्रीफ आइडिया देना है। पीलियोट्रॉपी का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, पीलियोट्रॉपी का ब्रीफ आइडिया, सिंपल ये टर्म है। पीलियोट्रॉपी मीन्स, देखो मेंडल ने एक पोस्टुलेट बोला था, एक स्टेटमेंट बोला था, every character is controlled by one gene having two alleles, मेंडल ने बोला था। और एक और बोला था, every character is controlled by one gene controls one character, ये मेंडल ने बोला था। क्या बोला था? मैं सीधे ऐसे लिखूंगा, एज पर मेंडल, या आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल, every character is controlled by one gene, ये मेंडल ने बोला था। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, फिर एक जीन के दो ही एलील होते हैं, मेंडल ने बोला था। लेकिन मेंडल के मरने के बाद देखा गया कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। This phenomenon wherein one gene controls many characters, more than one characteristics, is what we call as pleiotropy। तो यहाँ पे मेंडल का वो रूल जो था, जिसको हम बोलते हैं यूनिट कैरेक्टर, वो फेल होता है यहाँ पे। शाबाश। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोसेस इन विच वन जीन कंट्रोल्स, process in which one gene controls many या multiple, more than one, process in which one gene controls many or multiple characters or phenotypes is known as pleiotropy। और उस जीन को हम बोलते हैं नाम, एंड जीन इज कॉल्ड, उस जीन का हम नाम देते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन, एंड जीन इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपिक जीन। उस जीन को हम बोलते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन। इसके दो एग्जांपल्स आप याद रखो डायरेक्ट।
एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। दूसरी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम SCA बोलते हैं शॉर्टकट में। फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता है एक एंजाइम मिसिंग, लिवर एंजाइम, दैट्स कॉल्ड फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये आपको जूलॉजी में पढ़ना है एक्चुअली, मैं यहाँ पे एज ए टर्म इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इट्स वन जेनेटिक डिसऑर्डर, अनदर जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर related to hemoglobin wherein beta chain has a fault in one amino acid. Anyway, तो ये दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे जूलॉजी टीचर आपका, जब आप जूलॉजी में पढ़ेंगे व्हाट यू कॉल ह्यूमन जेनेटिक्स। तो दो एग्जांपल्स आप डायरेक्टली याद रखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज वन एग्जांपल एंड सिकल सेल एनीमिया अनदर एग्जांपल फॉर द प्लियोट्रॉपी। आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, हेरिडिटी। तो इसमें सीधे लिखूंगा मैं, ये थ्योरी किसने दी? प्रपोज्ड बाय ये थ्योरी दी है दो साइंटिस्ट ने, प्रपोज्ड बाय सटन एंड बवोरी, और एंड experimentally verified by T.H. Morgan, थॉमस हंट मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम है, एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय T.H. मॉर्गन। इसके कुछ मेन फीचर्स है इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। क्या है मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी? मेन पॉइंट्स क्या इस थ्योरी के? पहला पॉइंट है कि देखो, पेरेंट्स है, माँ बाप, और इनके चिल्ड्रन है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच जो लिंक पैदा करता है वो है गैमीट, क्योंकि गैमीट से ही बनता है जायगोट से एम्ब्रियो, और इसी से अगली जनरेशन वजूद में आती है। तो कौन सा चीज पैदा करता है लिंक दो जनरेशन के बीच? इट इज द गैमीट। इन्होंने यही बोला। क्या बोला पहला पॉइंट इनका? गैमीट्स act as bridge means link. Gametes act as bridge between successive generations. Successive means one after another. Gametes act as bridge between successive generations. और मुझे बोलो, दो पेरेंट्स में से अगर इंसानों की बात करेंगे, एक पेरेंट देता है बच्चे को 23 क्रोमोसोम्स मींस वन सेट, और दूसरा पेरेंट भी देता है 23 क्रोमोसोम्स मींस अनदर सेट, मींस दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। हाँ, both parents contribute equally. Both parents contribute equally to the offspring, means to their children. चिल्ड्रन के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। हाफ क्रोमोसोम देते हैं, मतलब वन सेट देता है फादर, वन सेट देता है मदर। और फादर के मेल गेमिट का कौन सा पार्ट एक्चुअली फ्यूज होता है फीमेल गेमिट के साथ? यस, न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस। हालांकि दो सेंट्रियोल भी होते हैं ह्यूमंस में, लेकिन मेनली न्यूक्लियस। मींस ये 23 क्रोमोसोम्स किस में है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किस में है? न्यूक्लियस में। ओनली न्यूक्लियस ऑफ मेल गेमीट, फ्यूजेस विद एग। इसका मतलब क्या है? दैट इज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, हमारे बॉडी के अंदर हर सेल में, डिप्लॉयड सेल में होते 46 क्रोमोसोम्स। इन 46 क्रोमोसोम्स पे होते तकरीबन 30,000 से 40,000 जीन। अब मुझे बोलो, नंबर ऑफ जीन ज्यादा है बॉडी के अंदर कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम? नंबर ऑफ जीन्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज एक क्रोमोसोम पे होते हैं हजारों जीन्स। तो हम लिखेंगे वही पॉइंट यहां, द नंबर ऑफ जीन्स आर far greater
देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होते हैं नंबर ऑफ जीन्स के मुकाबले में। लास्ट पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर एक जैसा होता है। व्हेन वी से जीन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स एक्चुअली क्रोमोसोम गेट्स ट्रांसफर्ड बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो मैं लिखूंगा देयर ऑकर्स पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन genes, what you call Mendel ने इसको बोला था factors नाम, between genes and chromosomes, or you can say Mendelian factors and chromosomes. These are the main points of chromosomal theory of inheritance. आगे बढ़ेंगे। अब शाबाश, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। देखिए बड़ा सिंपल है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे बोलता हूँ। देखो न्यूक्लियोसाइड बना होता है दो चीज़ों का। न्यूक्लियोसाइड इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसमें होता है एक पार्ट नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन भी हो सकती है, पैरिमिडीन भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। और इसके साथ होता है पेंटोस शुगर। Combination of nitrogen base and pentose sugar is known as nucleoside. अब अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन चीज़ों का। ये दो चीज़ें मीन्स न्यूक्लियोसाइड, यू कैन से नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये दोनों तो है ही। और इसके साथ हम ऐड करते हैं तीसरा कंपोनेंट दैट इज फॉस्फेट, पी, फॉस्फोरिक एसिड, नो प्रॉब्लम। Nucleoside, SIDE is side, this is tide. Nucleoside is composed of nitrogen base and pentose sugar, while as nucleotide is made of nucleoside, means nitrogen base pentose sugar, along with phosphate or phosphoric acid. यहाँ देखो nucleoside versus nucleotide. This is nucleoside, this one यहाँ लिखा है nucleoside. इसमें क्या क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजन बेस बोलो, नाइट्रोजन बेस है ये, नाइट्रोजन बेस, वही मैंने लिखा नाइट्रोजन बेस है इसमें, नाइट्रोजन बेस। और यहाँ क्या है? शुगर। ये एक्चुअली पेंटोस शुगर होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। दिस इज नाइट्रोजन बेस, दिस इज पेंटोस शुगर। नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर, ना नाइट्रोजन बेस पे चार्ज होता है ना होता है पेंटोस शुगर पे कोई चार्ज, और दोनों जब मिलते हैं कोई चार्ज नहीं रहेगा, मीन्स न्यूक्लियोसाइड पे चार्ज नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। न्यूक्लियोसाइड पे कोई चार्ज नहीं रहता है। और जो बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच होता है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कनेक्ट्स नाइट्रोजन बेस विद पेंटोस शुगर इन न्यूक्लियोसाइड। ओके, एन ग्लाइकोस, एन मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला, दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीजों का। नाइट्रोजन बेस तो है ही, इसमें यहाँ पे लिखा है बेस, इट्स एक्चुअली नाइट्रोजन बेस, बेस सिंपली बेस और नाइट्रोजन बेस, दिस इज नाइट्रोजन बेस। दिस वन इज पेंटोस शुगर हियर, इसने लिखा है राइबोस, जरूरी नहीं है राइबोस हो, ये डीऑक्सीराइबोस भी हो सकता है। पेंटोस शुगर, दिस इज नाइट्रोजन बेस। और ये क्या है? फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। शाबाश। combination of nitrogen base, pentose sugar and phosphate is what we call as nucleotide. यहाँ न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच बॉन्ड है, यहाँ ये वाला बॉन्ड जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच बॉन्ड। यहाँ पे दिस इज द बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डायस्टर नहीं, डायस्टर होता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जॉइंस और कनेक्ट्स पेंटोस शुगर विद फॉस्फेट। अब नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फॉस्फेट पे नेट नेगेटिव चार्ज है, thus net charge on nucleotide will be negative. It is negatively charged. Nucleoside is
electrically neutral, but nucleotide is negatively charged due to presence of phosphoric acid or phosphate. Simply, nucleoside is combination of nitrogen base and pentose sugar. It does not carry any negative charge or any charge whatever. Nucleotide is combination of three components, nitrogen base, pentose sugar and phosphate. It is net negatively charged molecule due to presence of phosphoric acid or phosphate. These are two differences between nucleoside and nucleotide. आगे बढ़ेंगे. नाउ वाटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बड़ा सिंपल है. दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था, पहला ही पॉइंट लिखेंगे, दो साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया, प्रपोज्ड बाय, एक का नाम था जेम्स वाटसन, प्रपोज्ड बाय जेम्स वाटसन, और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक, शॉर्टकट में हम बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक. ये मॉडल दिया दो साइंटिस्ट ने, वाटसन और क्रिक ने, कब? 1953 में, एंड वर अवार्डेड. इनको फिर दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला 1962 में, एंड वर अवार्डेड. उस प्रेस्टिजियस अवार्ड को नाम दिया जाता है नोबेल प्राइज, विच इज अवार्डेड एवरी ईयर ऑन December 10. नॉमिनेशन की जाते 2 महीने पहले, अक्टूबर में नॉमिनेशन की जाती है नोबेल प्राइज की. 6 फील्ड्स में टोटल दिया नोबेल प्राइज. इनको मिला जो है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी, एंड वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1962. इनके साथ एक और साइंटिस्ट था बाय द वे, एंड वर अवार्डेड नोबेल प्राइज 1962 along with, किसके साथ? विल्किन साइंटिस्ट का नाम था, along with विल्किन्स इन मेडिसन. इनको मेडिसन में मिला नोबेल प्राइज, इन मेडिसन और फिजियोलॉजी, एंड वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1962 along with विल्किन्स इन फिजियोलॉजी और मेडिसन. चलिए, वाटसन क्रिक मॉडल को हम शॉर्टकट में बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल दिया वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में था. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? दो स्ट्रैंड्स का आपस में जो होते हैं कोइलेड, बट वी कॉल्ड डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल. सो वाटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट्स एंड दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1962 along with विल्किन्स. दैट्स ओके. नाउ इनके मॉडल की खास बात क्या थी? इन्होंने दो एक्चुअली एविडेंस इस्तेमाल किए थे इसमें. एक तो चरगाफ एक साइंटिस्ट था, उसने डीएनए पे काम किया था. एक और था एक्सरे रिफ्रैक्शन, जो विल्किन और जो यहाँ पे विल्किन आप देख रहे हो और फ्रैंकलिन, उन दोनों ने ऑलरेडी काम किया था डीएनए पे, और चरगाफ ने भी काम किया था. उनका डेटा इस्तेमाल करके उन्होंने फॉर्मुलेट मॉडल किया. इस मॉडल की खास बात क्या है? शाबाश, यहाँ लिखाऊंगा एक दो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स ऑफ वाटसन क्रिक्स मॉडल. मेन पॉइंट्स याद रखो. मेन पॉइंट क्या है? पहला, इन्होंने बोला डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो दो चेन्स का, दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, जो आपस में होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कॉइलेड, राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. पहला पॉइंट लिखूंगा, क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू चेन्स, या मैं लिखूंगा टू स्ट्रैंड्स, जो एक दूसरे के ऊपर है, wound in right-handed, wound in right-handed fashion. मतलब हो गया राइट हैंडेड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर करते ना, what we call as folding, what we call as twisting या coiling, what we call here. One strand is this, another strand is there, which is actually winding in right-handed fashion. This one. और डायमीटर है डीएनए मॉलिक्यूल का, मीन्स यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है ये है 20 एंगस्ट्रॉम्स की, जिसको हम बोल सकते हैं 2 नैनोमीटर भी. ये डायमीटर है डीएनए मॉलिक्यूल का. शाबाश, हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. दूसरा पॉइंट इनका इज 20 एंगस्ट्रॉम्स, अदरवाइज 2 नैनोमीटर्स. डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम्स और 2 नैनोमीटर. हो गया दूसरा पॉइंट. इनका तीसरा पॉइंट था कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट. मतलब को एक स्ट्रैंड है 5' 5th कार्बन यहाँ पे, यहाँ 3' 5' 3' डायरेक्शन में, लेकिन दूसरी स्ट्रैंड है इसको अगेंस्ट, यहाँ से 3' यहाँ से 5'. मतलब को
two strands of DNA are opposite to each, not parallel but एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल आना जरूरी है। अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स पैरेलल रहेंगे, पैरेलल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन नहीं बॉन्डिंग कर सकते हैं तो ये तो डबल हेलिकल बन ही नहीं सकता है। तो वही लिखेंगे टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, they run in opposite directions. One is in 5' direction, 5' to 3', another is, one is 5' 3', another is 3' 5'। ये क्यों करते हैं ये? Only to make hydrogen bonds। शाबाश। चौथा पॉइंट क्या है इनका? दो स्ट्रैंड्स को आपस में कौन जोड़ के रखता है? एक स्ट्रैंड है, दूसरी स्ट्रैंड है। जब एंटी पैरेलल आते हैं अगेंस्ट ईच अदर, कौन सा चीज इनको आपस में ज्वाइन करके रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, टू स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड बाय, two strands are joined by hydrogen bonds, H bonds, जिसमें यहां लिखूंगा, जिसमें A करता है T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गोनिन साइटोसिन के साथ G करता है C के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, in which A adenine pairs with T by 2 H bonds and G pairs with C by 3 hydrogen bonds। जो यहाँ पे भी आपको नजर नहीं आएगा। एक चीज यहाँ पे दिखा है इसने, देखो डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नैनोमीटर, अदरवाइज 20 एंगस्ट्रॉम्स। और एक और पॉइंट, नंबर 5th पॉइंट। नंबर 5th पॉइंट क्या है? दो बेस पेयर्स के बीच, यहां देखो ए ने किसके साथ पेयर किया? टी के साथ। देखो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ टी लिखा है। ए करता है टी के साथ बॉन्ड, क्या बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं एक दूसरे के साथ। जी और सी के, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। जी करता है सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ए तो एक बेस है, एडेनिन इज 1 बेस, थायमिन इज 2nd बेस। इन दो बेसिस ने आपस में क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको हम बोलेंगे अब ये बेसिस का एक जोड़ा है, बेसिस का एक पेयर है। वी कॉल एडेनिन थायमिन बेस पेयर। सर साइटोसिन और गोनिन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, तो हम बोलेंगे गोनिन साइटोसिन बेस पेयर। दिस 1 बेस पेयर, दिस अनदर बेस पेयर। अब दो बेस पेयर्स के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, अदरवाइज 0.34 नैनोमीटर। यहां देखें, ये एक बेस पेयर है, इधर देखो यहां, दिस इज 1 बेस पेयर हियर। जो दूसरा मार्कर में ये पेन उठाऊंगा, ये वाला देखो, दिस इज 1 बेस पेयर हियर, एडेनिन थायमिन बेस पेयर इज हियर, दिस वन, दिस इज साइटोसिन गोनिन बेस पेयर। इन दोनों के बीच जो ये दूरी है, इतनी ये वाली दूरी, ये है 0.34 नैनोमीटर, और यू कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम। वही मैं लिखूंगा यहां पे, डिस्टेंस between two base pairs या adjacent base pairs, BP means base pairs, कितना होता है? is 3.4 a नॉट एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर्स के बीच दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। और नंबर 5 था ये। अब नंबर 6 अगले पेज पे लिखूंगा, ये नंबर 5 है। नंबर 6 देखो, नंबर 6 है, डीएनए मॉलिक्यूल जब करता है रोटेशन, मतलब को जब ये हेलिकल राउंड्स करता है, एक राउंड मतलब को 360 डिग्री का एंगल जब निकालता है, उसमें 10 बेस पेयर्स आते हैं। मींस 10 बेस पेयर्स के बाद एक टर्न मुकम्मल हो जाती है। एक टर्न को हम बोलते हैं ना पिच, और एक पिच में, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो लेंथ कितनी होगी? 10 into 3.4 angstrom, that means 34 angstroms. So we'll look at number 6th point. DNA molecule makes 360 degree turn called pitch. एक टर्न को बोलते हैं पिच। एक पिच में कितने बेस आते हैं? बेस पेयर्स, बल्कि क्योंकि डबल हेलिकल है, containing 10 बेस पेयर्स with length। एक पिच में लेंथ कितनी आई? with length equal to 10 means number of base pairs multiply by
3.4 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज दो बेस पेयर्स के बीच इतनी दूरी है, वही हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, अदरवाइज 34 एंगस्ट्रॉम, अदरवाइज 3.4 नैनोमीटर दूरी होगी एक पिच, आई मीन डिस्टेंस होगी, एक लेंथ होगी एक पिच की। शाबाश। नंबर 7, डायमीटर डीएनए मॉलिक्यूल का चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। डायमीटर कितना मैंने बोला था अभी? शाबाश, यहाँ दिखाया हुआ है डायमीटर है डीएनए मॉलिक्यूल 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर्स, यहाँ भी लिखा है 2 नैनोमीटर से 20 एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। रीजन इज एक साइड में प्यूरिन आता है जो डबल रिंग्ड होता है, अपोजिट में आता है पैरिमिडीन जो सिंगल रिंग्ड होता है। तो कहने का मतलब है प्यूरिन ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू पैरिमिडीन, दैट इज द रीजन डीएनए मॉलिक्यूल्स डायमीटर डज नॉट चेंज। अगर प्यूरिन का था, प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग, प्यूरिन में डबल रिंग, इस प्यूरिन में डबल रिंग, ये तो डायमीटर 20 नैनोमीटर से ज्यादा, 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाता, 2 नैनोमीटर से ज्यादा। और पैरिमिडीन के साथ करता है सिंगल रिंग, क्योंकि पैरिमिडीन सिंगल रिंग बेस है, तो डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर से कम हो जाता है। लेकिन प्यूरिन के अपोजिट में पैरिमिडीन, इसलिए डायमीटर डज नॉट चेंज। diameter of molecule, DNA molecule remains constant। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। एज रीजन क्या है? एज प्यूरिन ऑफ वन स्ट्रैंड, एक चेन का, ऑलवेज प्यूर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है with pyrimidine of other strand, with pyrimidine of other strand। शाबाश। नंबर लास्ट पॉइंट लिखूंगा यहां पे, वो क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल का जो बैकबोन होता है वो बनाता है शुगर और फास्फेट। देखो ये है यहाँ पे पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट, ओके, पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट, ये बैकबोन। इस स्ट्रैंड को भी पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट, पेंटोज शुगर फास्फेट। बैकबोन डीएनए मॉलिक्यूल की जो आप ये देखते हो बैकबोन, ये वाली चेन, ये एक्चुअली शुगर और फास्फेट की बनी होती है। एक स्ट्रैंड शुगर और फास्फेट की, दूसरी स्ट्रैंड भी शुगर और फास्फेट की। और जो इसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होते हैं अंदर की ओर नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट टुवर्ड्स इंटीरियर फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय शुगर एंड फास्फेट एंड बेसिस आर प्रेजेंट टुवर्ड्स इंटीरियर फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही पॉइंट लिखूंगा। शुगर जो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस है डीएनए में, शुगर एंड फास्फेट forms backbone of molecule, means DNA molecule. Sugar and phosphate forms backbone of molecule, and nitrogen bases are present towards interior. नाइट्रोजन बेस अंदर की ओर होते हैं, टुवर्ड्स इंटीरियर, अंदर की ओर। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। दिस ऑल अबाउट वाटसन क्रिक्स डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम लगता है? यहाँ पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया एक डीएनए मॉलिक्यूल से नया डीएनए मॉलिक्यूल बनना, दैट्स सिंपल। अब कौन कौन सा एंजाइम लगता है? देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, सबसे पहला नंबर 1, फर्स्ट enzyme used in DNA replication is number 1 is called helicase or unwindase। हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है ऐसे, ये डीएनए डबल हेलिक्स है।
आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ए करता है टी के साथ बेस पेयरिंग, जी करता है सी के साथ, सही बात तो है। अब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए हमें डीएनए मॉलिक्यूल को पहले अलग अलग करना होता है एक दूसरे से, मतलब को डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना होता है। इन दो स्ट्रैंड्स के बीच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। और वो एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके, उसी एंजाइम का नाम है हेलिकेज और अनवाइंडेज। तो ये क्या करता है, ये ऐसे करता है बिहेवियर, देखो ऐसे, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये घुस गया दो स्ट्रैंड्स के बीच और अलग अलग किया इनको बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यही लिखूंगा हेलिकेज का फंक्शन, मुझे बोलो व्हाट हेलिकेज डज। शाबाश, हेलिकेज क्या है, ब्रेक्स या ऐसे लिखूंगा separates DNA double helix by breakdown of हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो स्ट्रैंड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड से ब्रेक करता है और डीएनए मॉलिक्यूल होता है अनवाइंड या व्हाट वी कॉल्ड एज ओपन, what unzipping otherwise you can call unzipping enzyme, जो करता है दो स्ट्रैंड्स को अलग थलग। शाबाश, मैं लिख सकता हूं यहां पे स्लैश करके unzipping enzyme, डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने वाला एंजाइम। ओके, अनवाइंड इज हेलिकेज और अनजिपिंग एंजाइम, ये दो स्ट्रैंड्स को अलग थलग करता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज सेकंड एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। क्या करता है ये, देखो हेलिकेज जब आगे बढ़ेगा डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर टेंशन या ट्विस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज जब हेलिकेज आगे आगे घुस जाएगा तो टेंशन या ट्विस्ट यानी क्वेश्चन पर वर्क है डीएनए मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा, और इस ट्विस्ट को निकालने वाला, सुपर कॉइलिंग को हल करने वाला एंजाइम जो इसको रिलीव करेगा टेंशन से, वो है टोपोआइसोमेरेज। ये डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर मारता है स्ट्रैंड के ऊपर कट, और जो भी इसमें ट्विस्ट होगा उसको निकालता है। मीन्स सीधे लिखेंगे ट्विस्ट रिमूविंग एंजाइम या रिलीविंग एंजाइम, इट रिमूव्स द ट्विस्ट और टेंशन या सुपर कॉइलिंग, ये निकालता है डीएनए मॉलिक्यूल से। ये ट्विस्ट किसने पैदा किया, वो करता है हेलिकेज करता है ट्विस्ट पैदा इस डीएनए मॉलिक्यूल में जब आगे बढ़ता है, लेकिन निकालने वाला एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। तीसरा PRIMASE प्राइमेस। डीएनए रेप्लिकेशन तब तक नहीं हो सकती है जब तक ना आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, एक फ्रेगमेंट होगा जिसका नाम है आरएनए प्राइमर। वो आरएनए प्राइमर की बेसिस पे ही रेप्लिकेशन हो जाती है, तो उस आरएनए प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम है प्राइमेस। तो ये क्या बनाता है, synthesizes short piece of single stranded RNA called RNA प्राइमर। ये RNA प्राइमर को करता है सिंथेसिस, RNA प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम है प्राइमेस। लेकिन जब रेप्लिकेशन हो जाते हैं फिर आरएनए प्राइमर को हटाया जाता है, ये सिर्फ इनिशिएशन में स्टार्टिंग में लगता है। शाबाश, आरएनए प्राइमर को ये बनाता है। ये हो गया तीसरा एंजाइम। फोर्थ एंजाइम कौन है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डीएनए पॉल, पॉल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीमरेज। ये तो वो एंजाइम है जो एक्चुअली डीएनए बनाता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है या न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ लेता है। क्या लिखेंगे, ये कौन सा एंजाइम है, डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, या बोलेंगे डीएनए पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है, डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यही एक्चुअली डीएनए बनाता है। लेकिन इसके
3 टाइप्स है। इसके टाइप्स क्या क्या है? डीएनए पॉल फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, अदरवाइज कॉल्ड, ब्रैकेट में लिखूंगा, कॉरनबर्ग एंजाइम। कॉरनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, आर्थर कॉरनबर्ग, उसने डिस्कवर किया ये क्या करता है? ये रेप्लिकेशन होने के बाद क्या करता है? ये इस आरएनए प्राइमर को हटा देता है और उस जगह पे डीएनए से फिल करता है वो गैप। वेरी सिंपल। रिमूव्स आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर रखता है इनिशिएशन में, स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसको हटाना पड़ता है। हटाने वाला एंजाइम है डीएनए पॉल फर्स्ट। रिमूव्स आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को हटाता है एंड फिल करता है गैप, एंड फिल्स गैप विद डीएनए। ये डीएनए से गैप को फिल करता है। दिस जॉब एट डीएनए पॉल फर्स्ट। डीएनए पॉल सेकंड क्या करता है? डीएनए पॉल सेकंड, इसको बोलते हैं रेपेयर एंजाइम। ये रेपेयरिंग करता है, डैमेज को करता है ठीक, ओके, सिंपल, ये उतना तूफान नहीं है। इट परफॉर्म्स रेपेयरिंग, डैमेज को ठीक करता है। तीसरा है डीएनए पॉल थर्ड, व्हाट वी कॉल रेप्लिकेस। ये असली रेप्लिकेशन एंजाइम है जो सारा का सारा डीएनए एक्चुअली कॉपी करता है, बनाता है। शाबाश। मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, असली रेप्लिकेशन वाला एंजाइम ही मेन रेप्लिकेशन एंजाइम। डीएनए पॉल 3 ही एक्चुअली रेप्लिकेशन करता है मेन। नंबर 5 इज डीएनए लाइगेस, लास्ट, जिसको हम बोलते हैं कभी कभार ज्वाइनिंग एंजाइम और मॉलिक्यूलर ग्लू। सिंपल आप लिखेंगे ज्वाइनिंग एंजाइम या मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, मतलब को ज्वाइन करने वाला। लाइगेस क्या करता है? देखो, जब रेप्लिकेशन हो जाती है ना, एक स्ट्रैंड बनती है कंटिन्यू। जब रेप्लिकेशन हो जाती है, देखो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड बनती है कंटिन्यू इन वन गो, दैट्स कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन डिसकंटिन्यूअस फैशन, दैट्स कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये फ्रेगमेंट से लैगिंग स्ट्रैंड पे, इनको हम बोलते हैं नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी पीसेस। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम है यही डीएनए लाइगेस। सिंपल में लिखूंगा ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, यही एंजाइम है डीएनए लाइगेस और मॉलिक्यूलर ग्लू और ज्वाइनिंग एंजाइम। These are the 5 different types of enzymes that are involved in DNA replication. आगे डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंसेस बोलो। बड़ा सीधा साधा है, सिंपल है, बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। एक साइड में लिखूंगा मैं डीएनए, दूसरी साइड में आरएनए, दैट्स ओके, दैट्स वेरी इजी। एक साइड में लिखो डीएनए, दूसरे साइड में लिखो आरएनए। डिफरेंसेस बोलो डीएनए और आरएनए के बीच। शाबाश, 2-3 डिफरेंसेस, 4-5, ओके। पहली डिफरेंस है यहाँ नंबर 1, डीएनए यूजुअली होता है डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? मैं लिखूंगा यहाँ पे डीएनए इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड, मतलब को डबल हेलिकल, इसमें 2 चेन्स होते हैं। लेकिन आरएनए यूजुअली होता है सिंगल स्ट्रैंड। नंबर 1, आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही चेन का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। हालांकि आरएनए डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, बट वेरी रेयरली। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, वेरी रेयरली। ये नॉर्मल है ज़्यादातर। इसमें होती है एक बेस जो आरएनए में नहीं पाई जाती नॉर्मली, कंटेन्स थाइमीन, टी जिसको हम लिखते हैं, ये डीएनए में पाया जाता है। थाइमीन के बदले आरएनए में होती है दूसरी बेस, कंटेन्स यूरासिल, जिसको हम यू बोलते हैं। हालांकि दोनों के बीच डिफरेंस है सिर्फ मिथाइल ग्रुप थी, इसमें होता है CH3 एक एक्स्ट्रा, उसमें वो नहीं होता है। तीसरा है, इसमें होता है शुगर, दैट्स कॉल्ड कंटेन्स, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक्चुअली बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर है। इसमें होता है कंटेन्स राइबोस शुगर होता है, इसमें कंटेन्स राइबोस शुगर। 2 शुगर्स में डिफरेंस होते हैं कार्बन नंबर सेकंड की। कार्बन नंबर सेकंड पे होता है उस पे OH, एक पे होता है H। एनीवे, फोर्थ डिफरेंस है डीएनए जो है डीएनए
दुनिया के अंदर एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। सारे के सारे यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, सारे बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, एनिमल्स में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कुछ गिने चुने वायरसेस में। कॉमन जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है कुछ गिने चुने वायरस में। जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस ओनली, ये कुछ गिने चुने वायरसेस में ही है जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए को अल्कली से कुछ नहीं हो जाता। आप NaOH डालो, KOH डालो, डीएनए को कोई असर नहीं पड़ेगा। इट इज रेजिस्टेंट टू अल्कली हाइड्रोलिसिस, इट इज रेजिस्टेंट टू अल्कली हाइड्रोलिसिस, मतलब अल्कली का कोई असर नहीं होता है डीएनए पे, NaOH का, KOH का, बेसिस का एक्चुअली। लेकिन आरएनए इस पे अल्कली अटैक करता है और इसको हो जाती है अल्कली हाइड्रोलिसिस। क्योंकि इस पे क्यों नहीं करता है अटैक, इस पे करता है क्योंकि आरएनए के ऊपर होता है राइबोस शुगर, राइबोस पे होता है सेकंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH जो नहीं होता है डीएनए पे, और उसी अल्कली करता है इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड इट अंडरगोज अल्कली हाइड्रोलिसिस, अंडरगोज अल्कली हाइड्रोलिसिस, अंडरगोज अल्कली हाइड्रोलिसिस। क्यों, वजह क्या है? ड्यू टू एक्स्ट्रा OH on 2' कार्बन, सेकंड कार्बन ऑफ राइबोस। क्योंकि इसमें राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर में होता है सेकंड कार्बन पे एक्स्ट्रा OH जो डीऑक्सीराइबोस शुगर में नहीं होता है। दैट्स व्हाई द रीजन इट अंडरगोज अल्कली हाइड्रोलिसिस व्हाइल इट्स रेजिस्टेंट। दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिफरेंस बोल, दैट्स वेरी इजी आल्सो। एक साइड में लिखो, एक साइड में लिखो डीएनए रेप्लिकेशन, इजी है, ज्यादा तूफान नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरे साइड में लिखो ट्रांसक्रिप्शन, आसान है। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच डिफरेंसेस बोलो। शाबाश। पहली डिफरेंस, डीएनए रेप्लिकेशन में आपको क्या मिलता है? डीएनए से डीएनए बनता है। हियर न्यू molecules of DNA means daughter molecules of DNA are produced from original DNA molecule, from original DNA molecule। सिंपल अंदाज में दिखाऊंगा यहाँ पे, डीएनए मॉलिक्यूल से नया डीएनए मॉलिक्यूल, ये तो रेप्लिकेशन है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? हियर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए। यहां डीएनए से आरएनए बनता है, मीन सिंपल, आपके पास डीएनए है, इससे बन जाएगा आरएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन है। जिस जगह से रेप्लिकेशन शुरू होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। रेप्लिकेशन बिगिनर्स, इट बिगिनस एट ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस बिगिन करता है, इट बिगिनस, ये शुरू हो जाती है, इट बिगिनस एट +1। +1 मतलब क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है इट्स कॉल्ड +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जिस जगह से रेप्लिकेशन शुरू होती है इट्स कॉल्ड ORI, ओरिजिनल रेप्लिकेशन। तीसरा पॉइंट, जो ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन में प्राइमर लगता है। आरएनए प्राइमर बोला था ना, वो प्राइमेज बनाता है। इट इन्वॉल्व्स आरएनए प्राइमर, इन्वॉल्व्स आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के बगैर एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्राइमर नहीं लगता है। नो आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड,
प्राइमर लगता है रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन में लेकिन प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। नो आरएनए प्राइमर इज इन्वॉल्व्ड आर रिक्वायर्ड। तीसरी डिफरेंस। चौथी डिफरेंस है रेप्लिकेशन के द्वारा मैंने क्या बोला था, कौन सा एंजाइम डीएनए डबल हेलिक्स को अलग अलग करता है, अनवाइंड करता है, अनजिपिंग करता है, या दो स्ट्रैंड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता है, हेलिकेस या अनवाइंडेस। हाँ, हेलिकेस सेपरेट्स डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स को अलग अलग करता है हेलिकेस, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हेलिकेस नहीं लगता है, बल्कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो खुद ही हेलिकेस का भी फंक्शन करता है, वो अनवाइंडिंग भी खुद ही करता है। नो सेपरेट हेलिकेस एंजाइम इज यूज्ड। आरएनए पॉल मींस आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरएनए पॉल इटसेल्फ unwinds DNA during transcription। आरएनए पॉलीमरेज खुद ही अनवाइंड करता है, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन में अलग सेपरेट एंजाइम लगता है हेलिकेस। ये प्रोसेस कौन करता है रेप्लिकेशन? एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज करता है एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए पॉल परफॉर्म्स रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए एक्चुअली डीएनए पॉल ही एक्चुअली नया डीएनए बना लेता है, लेकिन यहां हमें लगता है आरएनए पॉल, आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन। शाबाश। रेप्लिकेशन सारे के सारे डीएनए को, जितना भी डीएनए सेल में होता है सारे के सारे डीएनए को रेप्लिकेशन हो जाती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक खास पोर्शन डीएनए का हिस्सा लेता है जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। लेकिन सारा का सारा डीएनए कॉपी हो जाता है रेप्लिकेशन में। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक खास पोर्शन होता है जो एक्टिव होता है डीएनए, वही ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। होल जीनोम, सारा जीनोम अंडरगोज रेप्लिकेशन। सारे के सारे डीएनए को रेप्लिकेशन हो जाती है, वेदर इट्स एक्टिव और इनएक्टिव व्हाटएवर। लेकिन ये नंबर 5 है, ये नंबर 5 यहाँ पे अब 6 ओनली पार्ट ऑफ जीनोम undergoes transcription. These are the main differences between replication and transcription. आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक कोड एंड इट्स, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड एंड इट्स फीचर्स। फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ये एक्चुअली नया क्वेश्चन है बाय द वे, ये ट्रांसलेशन रिक्वायरमेंट से हमारा क्वेश्चन। पहले मैं इसको रब करूँगा यहाँ, ये हमें बाद में पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ मैं फिलहाल हटाऊंगा। ओके, 13 क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड एंड इट्स फीचर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक चीज पहले सिखाऊंगा। हमारे पास एक प्रोसेस है, डीएनए से बनता है डीएनए। क्या बनता है? डीएनए। डीएनए से बनता है डीएनए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाम रेप्लिकेशन, ट्रू। फिर डीएनए से बनता है आरएनए, या मैं लिखूंगा यहाँ पे एक खास किस्म का आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाम ट्रांसक्रिप्शन। जो बड़ा बड़ा करूंगा थोड़ा, इसको थोड़ा बड़ा करूंगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं नहीं चाहिए। हाँ, मैंने क्या बोलना था आपको, हमारे पास होता है डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल से वापस डीएनए बनता है, वी कॉल दिस प्रोसेस एज रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से बनता है आरएनए, या मैं लिखूंगा यहाँ पे एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन,
जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन और प्रोटीन बायोसिंथेसिस। देख लीजिए, ओनली आरएनए, आरएनए की डिफरेंट टाइप्स है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, व्हाटएवर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए ही बना सकता है प्रोटीन। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम डीएनए थ्रू एमआरएनए। देखो, प्रोटीन का बनना डीएनए से एमआरएनए के थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए थ्रू एमआरएनए, इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा। एनीवे, मुझे वो नहीं पढ़ाना है। यहाँ क्या है, एमआरएनए इज द ओनली आरएनए दैट मेक्स द प्रोटीन्स। एम मीन्स हियर मैसेंजर आरएनए, इससे मैसेज होती है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। एमआरएनए चूंकि एक किस्म का आरएनए है, आरएनए हो या डीएनए, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। सो इसमें सीक्वेंस होते हैं बेसिस की, नाइट्रोजन बेसिस की एमआरएनए में, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे एमआरएनए दिखाऊं आपको, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए में 2 एंड्स होते हैं, 5' एंड 3' एंड, एज यूजुअल। एमआरएनए इज मेड ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे ए यू जी यू सी, ए यू जी जी, ए सी सी, व्हाटएवर। दिस सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, क्योंकि एमआरएनए नाइट्रोजन बेसिस का बना होता है, सीक्वेंस का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए विच कोड्स फॉर, जो एमआरएनए क्या बनाता है बाद में, प्रोटीन। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन, इसी को हम बोलते हैं नाम जेनेटिक कोड। मीन्स टर्म जेनेटिक कोड इज रिलेटेड टू एमआरएनए। और 3 बेसिस की सीक्वेंस एमआरएनए में, 3 base sequence, 3 base sequence, 3 base sequence, sequence of 3 bases in mRNA which codes for 1 amino acid. एक amino acid को recognize करते 3 bases, and this sequence of 3 bases in mRNA is known as codon. One codon is made of 3 bases, and one codon recognizes 1 amino acid, and the chain of codons in mRNA is called genetic code, or the sequence of codons in mRNA is called genetic code, or sequence of nitrogen bases in mRNA which codes for protein is called genetic code, and 3 base sequence is called codon which recognizes 1 amino acid. Okay, that's very simple. यही मैं लिखूंगा यहाँ पे genetic code में। तो हमने क्या अंडरलाइन करना है, जेनेटिक कोड और इसके फीचर। बड़ा सिंपल है, मैं ब्रीफ में जाऊंगा। ये लिखो पहला पॉइंट जेनेटिक कोड में, क्या, sequence of nitrogen bases in mRNA which codes for a polypeptide, या प्रोटीन लिखो, नो प्रॉब्लम, which codes for a polypeptide is genetic code. Sequence of bases in mRNA which codes for a polypeptide or protein is known as genetic code. और 3 बेसिस की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, शाबाश, 3 base sequence. 3 base sequence means sequence of 3 bases, 3 base sequence in mRNA which codes for an amino acid, which codes for an amino acid is known as codon. Codon is made of 3 bases, is known as codon. शाबाश। अब हमारे पास कितने कोडॉन है, कोडॉन्स का नंबर टोटल है हमारे पास, यहां देखो शॉर्टकट में दिखाऊंगा। नंबर ऑफ कोडॉन्स हमारे पास है बराबर 64। वह टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स हाउ मच, 64। अब डायरेक्टली याद रखना, 64 कोडॉन है हमारे पास। इन 64 में से 3 आर नॉनसेंस, जिनको हम बोलते हैं नाम स्टॉप कोडॉन्स या टर्मिनेशन कोडॉन्स, टर्मिनेशन कोडॉन्स, जो किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कौन कौन है, UAG, UGA और UAA। इनका अल्टरनेटिव नाम है UAG is otherwise called amber, it's called opal, and this one called ochre.
These three are called as nonsense codon. Nonsense why? Because they do not code for any amino acid. They play a role in termination or stopping translation. और हमारे पास एक कोडान दैट्स कॉल्ड इनिशिएशन कोडान. कौन है? AUG is common. AUG is which codes for methionine. AUG codes for methionine is common. हालांकि GUG भी कभी कभार इनिशिएशन का काम कर सकता है बट नॉट वेरी कॉमन. AUG which codes for methionine is common. इनिशिएशन आप बोलेंगे स्टार्ट कोडान. इनिशिएशन कोडान इट्स कॉमन इनिशिएशन मतलब को AUG करता है इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन. और इसका मतलब है ना AUG के दो फंक्शन है. यस AUG हैज ड्यूअल फंक्शन. AUG के क्या दो फंक्शन है? शाबाश. AUG हैज टू फंक्शन. नंबर वन, इट एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडान. यस इट एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडान. सेकंड, इट कोड्स फॉर मिथियोनिन. ये मिथियोनिन को भी कोड करता है, अमीनो एसिड को भी कोड करता है और स्टार्ट भी करके देता है ट्रांसलेशन. शाबाश. तो एक्चुअली हमारे पास 64 कोडन है टोटल. इसमें से 3 है नॉनसेंस कोडन जो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और एक्चुअल कोडॉन्स है हमारे पास सेंस कोडॉन्स विच आर एक्चुअली कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड्स आर ओनली 61. एनीवे, अब क्या क्या फीचर है जेनेटिक कोड के? हम लिखेंगे फीचर्स. यू कैन राइट characteristics of genetic code. Features of genetic code. Very simple. Features of genetic code. क्या क्या फीचर है? 5 फीचर है जेनेटिक कोड के. वेरी सिंपल. पहला फीचर है यूनिवर्सलिटी. मीन्स दुनिया के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लो, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजे, वायरस. Viruses are not truly living, but any living organism on the face of earth will have same genetic code, same 64 codons, same 3 nonsense codons, same AUG insertion codon. Almost every organism has same type of genetic coding machinery, but there are some exceptions. जैसे UAG is nonsense codon, लेकिन ड्रोसोफिला के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस UAG codes for an amino acid, मतलब को कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के अदरवाइज हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम किस्म का जेनेटिक कोड पाया जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर ऑफ जेनेटिक कोड दैट सेम ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम जेनेटिक कोड की मशीनरी होती है. इट इज पॉसिबल दैट DNA ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, व्हाट वी कॉल जेनेटिक इंजीनियरिंग. बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दिस यूनिवर्सलिटी, बिकॉज जेनेटिक कोड हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम है. एक ऑर्गेनिज्म का DNA दूसरे के अंदर लगाया जा सकता है, क्लोन किया जा सकता है. वही मैं लिखूंगा. यूनिवर्सल मीन्स विद फ्यू एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस है जैसे ड्रोसोफिला का माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ प्रोटोजोआन्स है. विद फ्यू एक्सेप्शंस सेम जेनेटिक कोड is present. Same genetic code is present in all living organisms. कुछ exceptions को छोड़ के otherwise same type of genetic code is present in all living organisms. That is, otherwise, that is genetic code is नियरली यूनिवर्सल. मतलब को लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है. नियरली यूनिवर्सल, नॉट ट्रूली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल. शाबाश. मैंने बोला इसी के बेसिस पे क्या है, यही तो बेसिस है जेनेटिक इंजीनियरिंग की. इट इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स क्लोनिंग DNA ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर. एक ऑर्गेनिज्म का DNA दूसरे के अंदर क्लोन करना या मल्टीपल कॉपीज बनाना. इट्स द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. दूसरा फीचर क्या है जेनेटिक कोड का? शाबाश. नंबर B. सेकंड फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मीन्स 3 बेसिस फॉर्म है कोडॉन. अभी बोला 3 बेसिस बनाते कोडॉन जो एक एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है. 3 bases, 3 nitrogen bases
form a codon which codes for an amino acid, जो एक एमिनो एसिड को कोड करता है. मीन्स जेनेटिक कोड इज ट्रिपल मीन्स 3 बेसिस फॉर्म में कोडन. दैट्स ओके. ये हो गया सेकंड फीचर. तीसरा फीचर क्या है? जेनेटिक कोड इज, मैं लिखूंगा यहाँ पे, जेनेटिक कोड जो है इट इज नॉन ओवरलैपिंग. जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. व्हाट डज नॉन ओवरलैपिंग मीन? यहाँ पे समझाऊंगा ये पॉइंट. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखो, मैंने भी आपको दिखाया था यहाँ पे. यहाँ एमआरएनए में देखो कितने कोडन है टोटल. 3 बेसिस 3 बेसिस 3 बेस 3 बेसिस. ये एमआरएनए यहाँ पे मैंने दिखाया, इस पे 4 कोडन है, बिकॉज कोडन इज मेड ऑफ 3 बेसिस. 1 कोडन, सेकंड, थर्ड, 4, 4 कोडन है. अब यहाँ 5वां कोडन है नहीं ना. 5वां कोडन पॉसिबल है बिकॉज 3 bases are part of one codon. These 3 bases are part of this codon. It is not possible that you will make the second codon like this. AUG is one codon, UGU is second codon, GUC will be third codon. No. One base is part of only one codon, not 2, 3 and all. Means जब हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, एक मिनट बराबर देखूंगा यहाँ पे. Genetic code is non-overlapping, means one base is part of only one codon. One base cannot be the part of 2 codons. मतलब को ये ओवरलैप नहीं हो सकता है कोई भी बेस एक कोडन की दूसरे कोडन के किसी भी बेस के साथ. वही होगा नॉन ओवरलैपिंग. शाबाश. यहाँ लिखेंगे नॉन ओवरलैपिंग मीन्स. शाबाश. दूसरा कलर करूंगा इस्तेमाल. वन बेस is part of only one codon and it is, और क्या होता है, comma-less. Comma-less means there is no gap, means no base is left between 2. अगर एक कोडन है इसके बाद दूसरा कोडन है, 2 कोडन्स के बीच किसी बेस को छोड़ा नहीं जाता है. जेनेटिक कोड इज comma-less oblique punctuation-less या without punctuation. Punctuation-less, without punctuation, and read in contagious fashion, continuous fashion. Contagious fashion, continuous fashion. कहाँ से कहाँ? From 5' to 3' end. Shabash. Another feature, number D. Genetic code is specific or unambiguous. Specific means one codon codes for only one amino acid. एक कोडन एक एमिनो एसिड को कोड करता है. एक कोडन 2 एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है. एक से ज्यादा को नहीं कोड कर सकता है. सिंपल. It means what? One codon codes for only one amino acid. That's it. One codon codes for only one amino. एक कोडन एक ही एमिनो को कोड करता है. That's what is called specific. मतलब एक कोडन एक ही एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है. एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ. AUG किसको कोड करता है? मिथियोनिन को. सही बात. शाबाश. GUG कोड करता है सिर्फ और सिर्फ वैलिन को. UGG सिर्फ और सिर्फ कोड करता है ट्रिप्टोफान को. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोले, मतलब एक कोडन एक ही एमिनो को कोड करता है. नंबर लास्ट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड डिजेनरेट और रिडंडेंट. जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट और रिडंडेंट. यहाँ देखो इसका मतलब क्या है. हमारे पास कितने कोडन है? 64 टोटल. 3 है नॉन सेंस कोडन, वो तो किसी एमिनो को कोड नहीं करते. एक्चुअल कोडन है हमारे पास सेंस कोडन 61. मीन्स हमारे पास 61 कोडन है. एमिनो एसिड्स जो हमारे पास प्रोटीन में होते हैं नॉर्मली दैट इज ओनली 20. 22 तो है रिसेंट लेकिन नॉट एस्टैब्लिश्ड येट.
So we have 20 amino acids which take part in translation or protein synthesis, means 20 amino acids are present in proteins. और हमारे पास 20 amino acids के लिए number of codons कितने हैं? 61 codons for 20 amino acids. इसका मतलब हो गया एक amino acid को एवरेज में एक से ज़्यादा codons आ जाते हैं. This property wherein single amino acid is recognized by multiple codons is called degenerate or redundant nature. Means what? Means single amino acid is recognized, single amino acid is recognized by multiple, means more than one, multiple codons. The process wherein single amino acid is recognized by multiple codons is known as degenerate or redundant nature of genetic code. शाबाश. ये कैसे पॉसिबल है? It is possible. वजह क्या है? Simple reason. It is possible as number of codons are greater. Number of codons are greater. ज्यादा है. कितने हैं नंबर ऑफ कोडॉन हमारे यहाँ? 61 है. सेंस कोडॉन्स की बात कर रहा हूँ. Then number of amino acids. Then number of amino acids जो हमारे पास 20 है, मैजिक 20 amino acids. That's the reason एवरेज में आपको मिलेगा more than one. हालांकि दो एमिनो एसिड्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो पाता है आउट ऑफ 20. एक है मिथ्योनिन, दूसरा है ट्रिप्टोफान. उनके लिए एक एक कोडॉन ही है. हालांकि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को. These are the 5 features of genetic code. Now we'll begin the last question. That is the last question of the unit. सिंपल है. क्या है क्वेश्चन? ट्रांसलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स. फिर से मैं वही बात बोलूंगा आपको, सेंट्रल डोगमा वाली. हमारे पास डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता है, वी कॉल इट रेप्लिकेशन. डीएनए से बनता है आरएनए, यहाँ हम दिखाएंगे एमआरएनए, कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. दिस स्कीम इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा. शाबाश. सेंट्रल डोगमा में ये रेप्लिकेशन है, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन. सारे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम डीएनए थ्रू एमआरएनए, या डीएनए मेक्स एमआरएनए मेक्स प्रोटीन्स, इज व्हाट वी कॉल एज सेंट्रल डोगमा. नाउ सेंट्रल डोगमा में रेप्लिकेशन, इसके बारे में हमने तफसीलन बात की. ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा डिफरेंसेस क्या है, और ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा. क्या है ट्रांसलेशन? यहाँ पे ट्रांसलेशन के हमें रिक्वायरमेंट्स देखने हैं बस. ट्रांसलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए. पहला पॉइंट लिखाऊंगा, पहला पॉइंट लिखा. सिर्फ रिक्वायरमेंट्स में बोलूंगा यहाँ पे. सिंपल भाषा में, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स from mRNA, from genetic code of mRNA is translation. ये प्रोसेस हमेशा और हमेशा हो जाती है. शाबाश. occurs in, ये प्रोसेस कहाँ होता है? occurs in साइटोसॉल. हमेशा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कहाँ होती है? साइटोसॉल में. साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में फर्क है, आपको पता होगा. ये साइटोसॉल मीन्स द फ्लूइड, द मैट्रिक्स. साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोसॉल अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज. जब ऑर्गेनेलीज और साइटोसॉल आप मिलाएंगे साइटोप्लाज्म बन जाएगा. तो अकर्स इन साइटोसॉल ऑन राइबोसोम्स, या राइबोसोम्स व्हाट वी कॉल एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. राइबोसोम्स करते हैं ट्रांसलेशन. राइबोसोम कहाँ होते हैं? साइटोसॉल में. शाबाश. इसके रिक्वायरमेंट्स हमें पढ़ने हैं. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. रिक्वायरमेंट्स क्या है ट्रांसलेशन के, ये हमें पढ़ना है. कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन में, ये बोलूंगा यहाँ पे, तो दैट विल बी एंड. क्या क्या रिक्वायरमेंट? 5 रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसलेशन में. नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एमआरएनए. एमआरएनए क्यों है ट्रांसलेशन के लिए जरूरी? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी. शाबाश. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए की जरूरत इसलिए है बिकॉज एमआरएनए में मैसेज है, एमआरएनए में इंफॉर्मेशन है. क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए. एक एक चीज लिखूंगा यहाँ पे. एमआरएनए क्यों जरूरी है? शाबाश. कैरीज मैसेज. उस मैसेज को क्या नाम देते हैं? जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन.
प्रोटीन बनाने के, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए जो डिज़ाइन है प्रोटीन का वो सारा छपा हुआ है mRNA के ऊपर, इसलिए mRNA ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास है tRNA, ट्रांसफर RNA भी ज़रूरी है। क्यों? ट्रांसफर RNA ही साइटोसॉल में लाएगा एमिनो एसिड्स को वन बाय वन, किसके पास? राइबोसोम के पास। मीन्स इट कैरीज, इसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज एमिनो एसिड्स, याद रखिएगा ये पॉइंट, फंक्शन ऑफ tRNA। इट कैरीज एमिनो एसिड्स कहाँ से कहाँ? फ्रॉम साइटोसॉल, जो साइटोसॉल में होते हैं, कहाँ तक? ऑन टू राइबोसोम्स, ऑन टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान जो एमिनो एसिड्स होते हैं साइटोसॉल से लाने कहाँ तक? राइबोसोम के पास, वो सारा फंक्शन करता है tRNA, ट्रांसफर RNA। तीसरा हमारे पास है एमिनो एसिड्स। अरे एमिनो एसिड्स ही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन्हीं से तो हमारा प्रोटीन बन जाएगा। यही तो मोनोमेरिक यूनिट्स है प्रोटीन्स के, व्हाट वी कॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर्स ऑफ एमिनो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन तो एमिनो एसिड्स का ही बना होता है। चलिए 20 एमिनो एसिड्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, मैंने बोला था उनको हम बोलते हैं मैजिक 20 या स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, वो तो आप zoology में पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल में। नंबर अनदर इज राइबोसोम, व्हाट वी कॉल अदरवाइज एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, अरे यही तो मशीनरी है, यही तो mRNA को रीड करेगा और वन बाय वन इनकॉर्पोरेट करेगा एमिनो एसिड को, ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसमें क्या लिखना है? ऐसे लिखेंगे, मशीनरी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, मशीनरी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, यही करता है सारा प्रोसेस। और लास्ट चीज है, इसमें लगते हैं एनर्जी और एंजाइम्स, ATP, GTP, एनर्जी एंड एंजाइम। एंजाइम्स लगते हैं बहुत सारे ट्रांसलेशन में, जैसे एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, या हमारे लगते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेस एंड ऑल। तो एंजाइम्स और एनर्जी लगती है ट्रांसलेशन में। दिस इज ऑल अबाउट important questions of genetics, both Mendelian, what we call that principles of inheritance and variation, and molecular genetics. Thank you.